topic is weaving. Weaving is formation of fabric. जो कपड़ा हम पहनते हैं शर्ट में, पैंट में, सोफा कवर में यूज करते हैं, पर्दे में यूज करते हैं, वो उस तरह का कपड़ा बनाने का प्रोसेस को वीविंग कहते हैं. वो दो तरीके के उसमें धागे होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड्स एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. वन इज लेंथवाइज and then we will insert in this sheet widthwise yarn. This lengthwise yarn or longitudinal is called as warp. They may be 400, they may be 4000, 6000 in number, and then we insert is widthwise, that is called as weft. Process of engaging warp and weft is called as weaving. It means interlacement of warp and weft. Weaving is interlacement of warp and weft. So this is, and the machine on which we make it is called as loom. This is the picture of the loom. दिस इज फैब्रिक बीइंग मेड. ये कपड़ा बन रहा है. पीछे की तरफ वो जो वीवर बीम था, वीव, क्योंकि वीव करना है तो वीवर बीम लगेगा. और ये जो हम डिस्कस करते हैं ये है टेपेट्स. ऊपर उठाती हैं धागे को, लेंथ वाइज को नीचे ले. ये लेंथ वाइज जो ऐसे ऐसे धागा है ये तो हो गया वार्प, और विड्थ वाइज ऐसे ऐसे इस लूम में हम विड्थ वाइज डाल रहे हैं धागा. दैट इज कॉल्ड एज वेफ्ट. कहाँ से डाल रहे हैं? यहाँ से, और यहाँ से वेफ्ट वाइज डाल रहे हैं. ऐसे इंसर्ट हो रहा है. पीछे से आगे की तरफ कपड़ा बन रहा है. ये उठेगा और ये वेफ्ट वाइज है. यही चीज यहाँ है. ये वाली चीज, ये बीम आ गया जो पीछे है, ये पीछे का बीम आ गया, वीवर्स बीम जिसे हम बोलते हैं. यहाँ से ऐसे जाके धागा बनता है. सो weaving is most popular fabric formation method. It is made of two type of threads. Threads which are longitudinal is called as warp, and threads which are widthwise used in called as weft or pick. And weaving is interlacement of warp and weft. 1 2 3 4 5 शब्द. इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट इज वीविंग. ये आना ही आना है. एंड द मशीन ऑन विच वीविंग इज डन इज कॉल्ड एज लूम. सो वार्प एंड वेफ्ट आर टेकन and interlacement of them takes place. This process is called as weaving, and weaving is done on loom, and after weaving fabric is formed, कपड़ा बनता है. So these are word: warp, weft, interlacement. Process is called weaving, and it is done on loom, and fabric is formed. So these are basic definitions. हमने पहले भी पढ़ा था. पहले वाइंडिंग करते हैं हम, उसके बाद में वार्प शीट बनाते हैं, लंबाई वाली शीट, ऐसे वाली ये, दैट इज कॉल्ड एज वार्पिंग मशीन. उसके बाद में उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो भी है मटेरियल स्मूथ करने के लिए, फाइबर को सेट करने के लिए साइजिंग करते हैं. उसके बाद में आखिरी में लूम. सो दिस इज बेसिकली प्रोसेस इज बीइंग शोन. वाइंडिंग, then winding to warping, then warping to sizing, then sizing to we form loom. Now loom can be a different type of machine are given. Winding machine, precision winding or non-precision. Then warping machine is high speed warping machine or direct warping machine or sectional warping machine. Sizing can be slasher sizing. Normally this is used, normally this is used, and normally this is used. Ball warping or hank sizing machine. Now loom on which weaving is done. पहले हैंडलूम थे, हाथ से चलते थे, ये अलग अलग है, ये याद करने की जरूरत नहीं है. देन इज पावर लूम. हैंडलूम, देन पावर लूम. पावर लूम में जो है
पहले शटल से चलते थे, आगे बताएंगे। और अब इसके बाद में शटल है काफी हैवी सी होती है, इसको हटा दिया। अब इसकी जगह क्या आ गया, पहले रेपियर आया, फिर पानी से चला दिया, जैसे पॉलिस्टर वगैरह का धागा पानी से, वाटर जेट से, और फिर हवा से कॉटन वगैरह, क्योंकि कॉटन वगैरह के अंदर पानी सोख लेती है तो वो नहीं चलेगा, तो एयर जेट। तो दीज आर शटल लेस लूम्स, दीज थ्री आर शटल लेस लूम्स। और पावर लूम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, शटल लूम्स और शटल लेस लूम्स। नाउ you have seen the diagram of weaving machine. This is weaving machine and these are parts of weaving machine. We shall be discussing one by one these parts. From this side to this side we will be discussing. Machine that is used for weaving is called as loom. The best, ठीक है। Warp sheet is fitted on the back of the loom. This is warp sheet which is called as weaver beam. It is fitted and then this guide is there. The name is backrest. इसको याद करने की जरूरत नहीं, वीवर्स बीम याद कर लेना। वार्पर बीम और वीवर बीम, अगर तो उस पर साइजिंग हो गई तो वीवर बीम है, साइजिंग नहीं की तो वार्पर बीम है। देन इट पास ओवर बैकरेस्ट, इसे काट सकते हो। देन ये वायर लगी हुई है, अगर ये टूट गया तो ड्रॉप वायर्स लगा रखी है सेंसिंग के लिए। अगर कोई धागा टूटता है तो कपड़ा नहीं बनेगा, इसलिए ये वो गिर जाएगी और ये रुक जाएगा, तो ड्रॉप वायर। इसे याद नहीं करने की जरूरत है, इसे याद नहीं करना, अभी सेकंड ईयर में करना। देन दीज आर पास थ्रू हील्ड आईज। अब हमें इसको अप डाउन करना है। अप डाउन करने के लिए शीट को खोलेंगे, ये है लेंथ वाइज शीट, इसको खोलेंगे और इसके अंदर विड्थ वाइज धागा डालेंगे। खोलने के लिए हम किसी चीज में से पास करेंगे, उसे कहते हैं हील्ड आई। ये रही, ये हील्ड आई और ये हील्ड आई है। ये हील्ड आई, ये पूरी हील्ड है, ये हील्ड है, ये हील्ड है, और ये हील्ड फ्रेम है। कैसे है ये, ऐसे फ्रेम है, एक फ्रेम, ये दूसरा फ्रेम, और इसके अंदर ये हील्ड है और ये आई है। दिस इज हील्ड, दिस इज आई ऑफ हील्ड एंड दिस इज फ्रेम ऑफ हील्ड। तो दिस इज कॉल्ड एज हील्ड फ्रेम, दिस इज कॉल्ड एज हील्ड, दिस इज कॉल्ड एज हील्ड आई। धागा इसमें से पास करते हैं, ये देखो धागा पास कर रखा है, ये एक धागा पास किया है, ये दूसरा धागा पास किया है, यहां पर स्पेस बन गया, इस स्पेस में से ये शटल है, देखो शटल लिखा हुआ, इसको पास कर दिया, यानी विड्थ वाइज धागा। ये हो गया वार्प, लेंथ वाइज धागा, और ये विड्थ वाइज पास कर दिया, विड्थ वाइज धागा। तो ये रिमेंबर करना पड़ेगा आपको, दैट देयर आर हील्ड्स in which there is heeled eye through which warp is passed. Now these are fitted on heeled frame. Heeled frame के अंदर फिट होगी। ये heeled frame are attached with ropes. ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये these gets up and down motions. Thus the sheet is divided into two layers. एक कम से कम ऊपर जाएगा, एक नीचे, कुछ धागे ऊपर जाएंगे, कुछ धागे नीचे जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ द वार्प शीट इनटू टू लेयर इज कॉल्ड एज शेडिंग। दिस इज कॉल्ड एज शेड। शेड मींस जैसे बस के शेल्टर के लिए शेड होता है, यानी छाया। ये एक तरह से शेड बन गया, ऐसे करके ये छप्पर बन गया, तो इसका नाम शेडिंग आ गया। अब इस शेड के अंदर से यहां से शटल पास करते हैं, ये शेड बन गया, शटल यानी विड्थ वाइज धागा पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेफ्ट। विद द हेल्प ऑफ शटल वेफ्ट और पिक इज इंसर्टेड। देखो वेफ्ट और पिक इज इंसर्टेड इन दीज टू लेयर। दिस पासिंग ऑफ दिस पिक और वेफ्ट फ्रॉम वन साइड ऑफ द, यहां से इधर से पास की, इधर गई, यहां से इधर या इधर से इधर, वन साइड of the fabric to another side or another to वापस, is called as picking. pick करना, choose and picking। तो shedding first motion है, picking second, ठीक है। this is done on sleigh, ये इसके ऊपर चलेगा, किसी चीज पे तो शटल चलेगी, ये फ्रेम है जिसपे शटल चलेगी, that is called as sleigh। तो ये भी नाम याद करना है। तो आपको वार्पर वीवर बीम, शीट हो गई, हील्ड आई, हील्ड फ्रेम, और शेडिंग पिकिंग, और स्ले के अंदर एक रीड कंघे की तरह चीज फिट है। जो भी धागा जाएगा, अब ये धागा चला गया, ये कंघा या
रीड इसको आगे सरका देगी। ये बात यहाँ पर कहाँ तक सरकाएगी? ये जहां तक, यहां तक, इस पॉइंट तक। यहाँ कपड़ा बना हुआ है, ये है फैब्रिक, कपड़ा बना हुआ, दिस इज फैब्रिक, और दिस इज वार्प शीट। यहां तक सरका देगी तो ये कपड़ा आगे बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड एज फेल ऑफ द क्लोथ। जहां पर कपड़ा गिर जाता है, यानी ये कपड़ा यहाँ गिर जाता है, इसके बाद में शीट शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज फेल ऑफ द क्लोथ। दिस मोशन ऑफ शिफ्टिंग, ये वाला जो धागा आखिरी में इंसर्ट किया है, इसको शिफ्ट करना टू द फेल ऑफ द क्लोथ टू द लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज बीट अप। दिस इज थर्ड मोशन। तो ये जैसे पानी, खाना और हवा जरूरी है, ऐसे ये तीन मोशन जरूरी है कपड़ा बनाने के लिए। पहला है शेडिंग, दूसरा है पिकिंग, तीसरा है बीट अप। यहाँ पर, यहाँ लाते ही ये कपड़ा बढ़ गया, दैट मीन्स फैब्रिक इज मेड, कपड़ा बन गया। इसके दीज आर सो, जैसे हवा, पानी और खाना प्राइमरी जरूरत है, इसलिए इनका नाम है प्राइमरी मोशन। इसके बाद में ये कपड़ा बढ़ेगा तो बनेगा, तो इसको लपेटना है हमें। इसको लपेटोगे तो ये यहां से छोड़ना है। छोड़ने को कहेंगे टेक ऑफ, छोड़ना, ऑफ करना, और सॉरी लेट ऑफ, लेट ऑफ, लेट इट ऑफ। तो लेट ऑफ मोशन हो गया। ये है टेक अप, ये टेक अप रोलर है, तो यहाँ टेक अप हो रहा है, ये कपड़े पे लपटने लग जाएगा ऐसे ऐसे, यहां से आया, यूं आया और ये लिपट गया, टेक अप मोशन। तो लेट ऑफ और टेक अप लगातार चलने के लिए ये दोनों जरूरी हैं। तो कौन कौन से हुए? टेक अप मोशन जो क्लोथ बीम को बांधता है, क्लोथ को लपेटता है, टेक अप करता है, और लेट ऑफ मोशन जो उसको छोड़ता है बीम को। दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी। प्राइमरी के बाद में दो सेकेंडरी मोशंस आ जाते हैं। देखो क्लासिफिकेशन अब मोशन की दोबारा से यहाँ कर दी, इजी हो जाए। मोशन यानी इसमें क्या क्या वर्क है, तो आपको पार्ट्स के नाम याद करने, तो वीवर बीम, इसे ठीक कर लेना, ये वीवर बीम है या वार्पर बीम है। वीवर बीम, इसके बाद में हील्ड, हील्ड आई, हील्ड शाफ्ट, फिर शटल, फिर रीड, फिर ये फ्रंट रेस्ट से आ गया टेकअप रोलर और क्लोथ बीम। ये बस 5-7 नाम याद कर लोगे, तुम पार्ट्स के नाम आ गए। ये अप डाउन करती हैं ये चीजें, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। मोशन दो तरह के थे, प्राइमरी मोशन और सेकेंडरी मोशन। तो प्राइमरी कौन से थे? जैसे हवा, पानी और खाना। पहले तो उसको खोलोगे, बीम है, ये एक आपकी शीट है वार्प, इसको खोलोगे, खोलने के बाद इसके अंदर धागा डालोगे और फिर इस धागे को आगे पुश करोगे कपड़े तक। ये 3। शेड, शेडिंग ऑफ इज डिवाइडिंग शीट इनटू 2 लेयर। पिकिंग, पिकिंग इज इंसर्शन और ये शेड, शेड में इंसर्ट करना है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। एंड मतलब धागा, एंड, एंड इज वार्प, वार्प को एंड भी बोलते हैं। फ्रॉम वन एंड, एंड मतलब लास्ट, एंड ऑफ वार्प टू अनदर एंड ऑफ वार्प। इसको इंसर्ट कर दिया। क्या इंसर्ट किया? वेफ्ट। ये वार्प का वर्क है, ये वेफ्ट का वर्क है, वेफ्ट इंसर्ट कर दी। और इनको पुशिंग टू द लास्ट पिक इंसर्टेड, जो भी अब ये लास्ट पिक वेफ्ट पिकिंग से इंसर्ट किया है, पुशिंग पिक टू द फेल ऑफ द क्लोथ। ये वर्ड याद रखना है, फेल ऑफ द क्लोथ, फेल ऑफ द क्लोथ। जैसे इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट है, ऐसे ही फेल ऑफ द क्लोथ। तो 3 है प्राइमरी मोशन, शेडिंग, पिकिंग, बीट अप। ऐसे ही सेकेंडरी मोशंस हैं। अब इसको लपेटना है और इसको खोलना है, तभी ये लगातार बनता जाएगा। यूं कपड़ा और बनाना है 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, ये लगातार कैसे बनेगा? ये लपेटा जाएगा और ये खुलेगा। तो ये लेट ऑफ है। पहले इसको खोलोगे, रिलीजिंग ऑफ वार्प शीट, इस वार्प शीट को रिलीज करोगे। टेकिंग अप क्लोथ को, शीट को रिलीज करोगे, वार्प शीट विल बी रिलीज्ड। इट इज अ शीट एंड क्लोथ इज वाउंड। शीट इज रिलीज्ड एंड क्लोथ इज वाउंड। तो लेट ऑफ और टेक अप। बाकी जो बच गए, जैसे ये वार्प टूट गया तो उसका स्टॉप मोशन है, वेफ्ट है उसका स्टॉप मोशन है, कोई स्पीड बढ़ाने का है, कोई मान लो हमारे पास तौलिए होते हैं, तौलिए हैं जैसे इसके अंदर तौलिए में लूप डालने का कोई मोशन है, ये लूप डला हुआ,
इस तरह के जो भी एक्स्ट्रा मोशन है वो ऑक्सिलरी मोशंस में आएंगे। ठीक है, वेफ्ट में डिजाइन डालना है, ये वेफ्ट में डिजाइन डालने का है, ये टेरिपाइल है लूप डालने का है, फिर है वार्प स्टॉप मोशन, वेफ्ट का स्टॉप मोशन, दीज आर ऑक्सिलरी मोशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी। प्राइमरी में 3 तरह के हैं मोशन, सेकेंडरी में 2 तरह के हैं, बाकी सब बच गए, ये इसके अंदर है। अब ये वर्ड था शेडिंग। शेडिंग कई तरीके की होती है, तो क्लासिफिकेशन शेडिंग के हिसाब से। एक टैपेट, ये रही टैपेट, यानी छोटा, जो हम प्लेन कपड़ा पहन रहे हैं, जैसे ये कपड़ा है, मैक्सिमम ऐसे कपड़े होते हैं जो शर्ट पैंट के प्लेन होता है, ये टैपेट से बनेगा, बहुत कम डिजाइन। थोड़ा ज्यादा डिजाइन है तो डॉबी, आपको बस ज्यादा से ज्यादा टैपेट, डॉबी, और बिल्कुल बड़ा डिजाइन है जैसे ये डिजाइन है तो ये बड़ा डिजाइन है, ये जैकार्ड से बनेगा, ये 3rd से। तो छोटा डिजाइन, थोड़ा बड़ा डिजाइन और सबसे बड़ा डिजाइन, बस ये 3 वर्ड्स ही याद करने हैं, बाकी पढ़ लेना। दूसरा था पिकिंग। पिकिंग के बेस पे आप क्लासिफिकेशन करोगे, तो पहले भी हमने बात की थी शुरू में, देखो यहाँ पे कि लूम कितनी तरह के, पावर लूम है, शटल और शटललेस, तो ये यहाँ पे कर दिए डिवाइड एज पर पिकिंग। शटल डालते हो, शटल हैंड लूम में डलती थी, पावर लूम में भी डलती थी, और फिर शटललेस। ये शटल बहुत हैवी होती है, धागा हल्का सा होता है, तो इसलिए इसको हटा दिया, क्योंकि ये पावर कंज्यूम करती है, ये टक्कर मारती है, स्पीड को कम कर देती है, हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो 3 तरह के हो गए, यहाँ भी थे, रेपियर, एयर जेट और वाटर जेट। रेपियर, एयर जेट एंड वाटर जेट। रेपियर छोटा सा होता है, 50 ग्राम का। शटल होती है 200-250 ग्राम की, तो 250 ग्राम से हमने पहले से 50 ग्राम पे लाए। एयर जेट में, एयर हवा का जेट होता है, जो कॉटन वगैरह के कपड़े हैं या और हैं। वाटर में वाटर का जेट होता है, ऐसी चीजें जिसमें पानी नहीं सोखता, ऐसा वाला फाइबर या यार्न, जैसे पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, ये वाले यार्न हम वाटर जेट से यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एयर जेट ही चलेगा। एयर जेट सब में चल सकता है, वाटर जेट 1 या 2 में चल सकता है, तो वाटर जेट कट गया। रेपियर, तो ये 3 तरह के लूम्स याद करने हैं, शटललेस, और शटल के 2 हैं, हाथ से चलने वाले या मोटर से चलने वाले। मोटर से चलने वाले ये भी हैं। ऑटोमेटिक का मतलब है कि ये जो शटल है, इसमें से कोई भी चीज बदलनी है तो ऑटोमेटिकली बदली जाएगी, हमें बदलने की जरूरत नहीं है। फिर से वीविंग क्या है, 2 तरह, वार्प और वेफ्ट है, उसकी इंटरमैशिंग है। वीविंग लूम के ऊपर होती है, लूम के अंदर ये इस तरह से प्रोसीजर है, ये जो भी 5-7 जो सर्कल किए हैं तुम भी कर लेना, यही वर्ड्स याद करने हैं। उसके बाद में इनके मोशंस हैं, मोशंस यहाँ भी एक्सप्लेन किए हैं, उसके बाद में क्लासीफाई कर दी। ये आ सकता है 2, 4, 6 नंबर का, ये नहीं आएगा डायग्राम, डायग्राम नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये पूरा याद होना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन और पैसेज, ये बिल्कुल, ये सारा याद होना चाहिए। ये पूरा पेज, डायग्राम छोड़कर ये पेज फिर से रिपीट होता है, और इसमें से सिर्फ ये वर्ड्स याद होने चाहिए, बाकी सारे में इसमें से ये इतना वर्ड याद होगा। ठीक है।